اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ارشد چیمہ صاحب، جو کہ ایک بہت ہی مشہور آنکالوجسٹ ہیں. ان سے جانتے ہیں کینسر کے بارے میں. سر، سب سے پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ کینسر ہے کیا اور یہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ دیکھیں، کینسر جو ہے نا ایک بہت ساری بیماریوں کا مجموعہ ہے. وہ آرگن سے کے حساب سے ہم کہتے ہیں کہ یہ چھاتی کا کینسر ہے، یہ بڑی آنت کا کینسر ہے، یہ معدے کا کینسر ہے، یہ جگر کا کینسر ہے. تو بنیادی طور پہ کینسر کیا ہے؟ نارملی جو جسم کے خلیات ہوتے ہیں نا، وہ بڑھوتری ان کی ایک جگہ پہ آ کے رک جاتی ہے. کینسر والا سیل جو ہے نا، وہ شترے بے مہار ہوتا ہے، اس کے کنٹرول لوز ہو جاتے ہیں، تو وہ باڈی میں بڑھتا رہتا ہے، کیونکہ اس میں جینیٹک چینجز ایسی ہو جاتی ہیں کہ وہ اس کی بڑھوتری یا گروتھ جو ہے وہ بند نہیں ہوتی. تو وہ اب ہر سیل جو ہے اس کا ایک نارمل میکانزم ہے کہ وہ اتنا بڑھے گا اور پھر بند ہو جائے گا. اس کی گروتھ بند نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے یہ بڑھتا پھیلتا جاتا ہے اور جو ہوسٹ ہے یا جو مریض ہے اس کے سارے ریسورسز پہ قبضہ کر لیتا ہے، اور الٹیمیٹلی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اگر اس کو نہ نکالا جائے. سر، یہ جو کینسر کی آگاہی سے متعلق جو آپ کانفرنس ہو رہی ہے، اس کانفرنس کا عام لوگوں کو، جو عام عوام ہیں، ان کو کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں، جو کہتے ہیں جی پرہیز علاج سے بہتر ہے، اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ بیماری کا علاج کریں تو کافی سارے ریسورسز استعمال ہوتے ہیں. لوگوں کے آپریشن کرنے پڑتے ہیں، لوگوں کو اسپتالوں میں داخل رکھ کے دوائیاں دینی پڑتی ہیں مہنگی. سب سے اچھا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی آپ کینسر ہے اس کی پریونشن کریں، یعنی اس کو ہونے نہ دیں. جو آگاہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پریونشن کی طرف زور دیں ٹریٹمنٹ کی بجائے. اب پریونشن کیسے ہے؟ پریونشن دو طرح کی ہوتی ہے. ایک پریونشن ہوتی ہے کہ آپ کینسر بننے ہی نہ دیں. جیسے منہ کا کینسر ہے وہ گٹکا اور پان کھانے سے ہوتا ہے، پھیپھڑوں کا کینسر ہے وہ اسموکنگ سے ہوتا ہے، یا خوراک کی نالی کا کینسر ہے، یا لیرنگس کا یا نرخرا جسے کہتے ہیں اس کا کینسر ہے. یہ انفیکٹ اگر آپ ٹوبیکو کو سوسائٹی سے ایلیمینیٹ کر دیں تو ہر تیسرا کینسر پاکستان میں ختم ہو جائے گا. اگر آپ گٹکا اور پان جو ہے وہ صرف وہ ایلیمینیٹ کر دیں تو کراچی کی 40% کینسر جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. یہ پریونٹیبل کینسر ہے، یہ ان نیسیسری مزری ہے. اور یہ ہمارا کام یہ ہے، آگاہی دینے کا کام یہ ہے کہ قوم کو پتہ چلے کہ یہ کینسر سے بچا جا سکتا ہے، بجائے یہ کہ ہم لمبی مہنگے علاج اور پینفل علاج کریں. جو دوسرا ہمارا پریونشن کا ہے کہ کچھ کینسر ایسے ہیں جس کو آپ پریونٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پریونٹیو کے جو کاز ہیں ہمیں نہیں پتہ، لیکن اگر ان کی جلد تشخیص ہو جائے، اس کانسیپٹ کو ہم اپنی زبان میں سیکنڈری پریونشن کہتے ہیں. جیسے چھاتی کا کینسر ہے، اگر چھاتی کا کینسر آپ 2 سینٹی میٹر میں پکڑ لیں تو آپ صرف اتنی چھاتی کے اندر سے رسولی نکال لیتے ہیں، اس کو ریڈیشن دیتے ہیں، نہ چھاتی کاٹنی پڑتی ہے، نہ مریض کی جو ہے وہ اپنا اس کو نقصان ہوتا ہے، اس کی زندگی لمبی ہو جاتی ہے. 95% سے زیادہ کیور ریٹ ہے اگر آپ کینسر کی ڈیٹیکشن ارلی کر لیں. اس کانسیپٹ کو ہم کہتے ہیں سیکنڈری پریونشن. تو دو باتیں ہم نے کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پرائمری پریونشن کرنی ہے کہ وہ چیزیں جن سے کینسر ہوتا ہے ان کو اوائڈ کرنا ہے. جیسے ٹوبیکو میں نے کہا بڑا سورس ہے بڑا سارا. اسٹرانگ سن لائٹ ہے اسکن کینسر میں بڑا اس کا رول ہے. پھر یہ ہے کہ اگر خوراک میں آپ ویجیٹیبل اور فائبر زیادہ استعمال کریں تو کولن کینسر بہت کم ہو جاتا ہے. کولن کینسر ان سوسائٹی کا مسئلہ ہے جن میں ریفائنڈ چیزیں، گوشت زیادہ لوگ کھاتے ہیں. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے پاکستان میں مریض زیادہ تر کس اسٹیج پر جا کر آتے ہیں؟ ہاں، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. دیکھو، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں نا ان میں کینسر جو ہے وہ ارلی سٹیج میں مریض کے پاس آتا ہے. ارلی سٹیج میں کینسر آ جائے تو اس کو ٹریٹ کرنا یا اس کا علاج کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. چھوٹا سا آپریشن ہوتا ہے، ریڈیشن یا کیمو تھراپی دیں، مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. ہمارے ملک میں کوئی
65 से 70% लोग एडवांस स्टेज में आते हैं हमारे पास। एडवांस स्टेज का मतलब है कि उनका कैंसर या लोकली जहाँ पे शुरू हुआ है वहाँ पे बढ़ गया होता है, जैसे छाती का कैंसर है तो फट के बाहर निकल आया हुआ है, या फिर ये है कि वो अपनी असल जगह से दूर फैल गया होता है, जिसे हम अपनी ज़ुबान में मेटास्टेटिक कैंसर कहते हैं। इस सूरत में अगर मेटास्टेटिक कैंसर हो तो क्योर अचीव करना बड़ा मुश्किल काम है। अगर आप अर्ली कैंसर डिटेक्ट कर लें, आगाही का तो मकसद ही ये है ना कि मरीज़ जल्दी डॉक्टर के पास आ जाए। जैसे अगर गिल्टी बनती है तो उस गिल्टी को आप जल्दी एक केयर गिवर को या डॉक्टर को दिखाएं। मरीज़ को तो नहीं पता कि ये गिल्टी जो है ये ख़तरनाक है कि नहीं, डॉक्टर को पता है, उसको समझ है, ठीक है ना। मरीज़ को कई दफ़ा पूछा है भाई ये गिल्टी कब से है, वो कहते हैं जी 2 साल से थी। तो मैंने कहा डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया, वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब दर्द ही नहीं करती थी। दर्द अगर आपके रसौली में नहीं होती ना तो वो ज़्यादा चांस है उसके कैंसर होने के बजाय उस रसौली के जिसमें दर्द हो रही हो, क्योंकि जो दर्द वाली रसौली है जनरली वो इन्फेक्शन होता है, एब्सेस होता है या इसके साथ लगी हुई चीज़ें हैं। तो लोगों का ख्याल ये है कि अगर एक रसौली जो है उसमें दर्द नहीं हो रही तो ये ख़तरनाक नहीं है। सर आपने बहुत ही अच्छी बात कही है कि बहुत ज़्यादा गुमान है लोगों में कि अगर रसौली जो हमारी बन गई जिसम में कहीं भी, उसका अगर साइज़ नहीं बढ़ रहा या उसमें पेन नहीं हो रही तो वो ख़तरनाक नहीं है। तो आप लोगों को क्लियर बता कीजिए कि अगर उसका साइज़ नहीं बढ़ रहा या अगर उसमें साइज़ कम या ज़्यादा नहीं हो रहा या पेन नहीं हो रही तो वो ख़तरनाक है कि नहीं है। देखें, मेजॉरिटी जो रसौलियाँ होती है ना जिसम में जो बनती हैं वो ख़तरनाक नहीं होती, लेकिन एक आम आदमी जो कि डॉक्टर नहीं है उसके लिए ये डिसाइड करना या फैसला करना कि ये रसौली ख़तरनाक है कि नहीं है मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसको समझ नहीं है। जैसे छाती की 80% गिल्टियाँ जो है वो ख़तरनाक नहीं होती, लेकिन जिस पेशेंट में वो है वो खुद औरत नहीं ये बता सकती कि ये गिल्टी ख़तरनाक है कि नहीं। इसलिए हमारा जो रूल है वो ये है कि जब एक गिल्टी बनती है तो उसको एक अच्छे डॉक्टर को, एक केयर गिवर को दिखाना चाहिए। अ डॉक्टर कैन डिसाइड कि ये अपना ये ट्यूमर या ये जो रसौली है ये ख़तरनाक है कि नहीं। कई दफ़ा हमें फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन पे नहीं पता करता, उसकी वापसी करनी पड़ती है, उसकी वापसी करनी पड़ती है। अब जब वापसी का मतलब है कि टुकड़ा मुआयने पे लेके खुर्दबीनी करना पड़ता है, तो ये डॉक्टर का काम है। इसलिए हर गिल्टी को, हर रसौली को डॉक्टर को जल्द दिखाना ज़रूरी है। ऑन दी एवरेज पाकिस्तानी औरत जो है इस वक्त 6 से 9 महीने लेती है जब वो देखती है गिल्टी बनी है छाती में, और उसके बाद वो डॉक्टर को दिखाने के 9 महीने तक वो इंतज़ार करती रहती है, डॉक्टर को नहीं दिखाती। मैंने पढ़े लिखे लोगों में, इवन डॉक्टर मरीज़ जो है उन्होंने भी देखा है कि वो शाई हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए। चलो फीमेल डॉक्टर को दिखा लो अगर, लेकिन दिखाओ तो सही किसी डॉक्टर को जाके, क्योंकि डॉक्टर डिसाइड कर सकता है कि ये रसौली ख़तरनाक है नहीं, मरीज़ नहीं डिसाइड कर सकता। किसी भी किस्म की रसौली हो वो लाजमी डॉक्टर को दिखाई जाए। अच्छा सर मुझे ये बताइए जो अवेयरनेस प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं ये कितने साल से आप लोगों ने शुरू किया है? देखें, कैंसर जो है ना एक बहुत बड़ा डिज़ीज़ बर्डन है सोसाइटी पे। मैं आपको बताऊं पाकिस्तान में सबसे जो ज़्यादा शरह मौत है ना वो इंजरीज़ या ट्रामा की वजह से होती हैं, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया या फायर आर्म इंजरीज़ है। उसके बाद जो बहुत बड़ा काज है ना पाकिस्तान में अमवात का, वो या कैंसर है या हार्ट डिज़ीज़ है। कुछ मुल्कों में कैंसर ज़्यादा है, कुछ में हार्ट डिज़ीज़ ज़्यादा है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से दोनों काफ़ी हैं। तो अगर आप देखो सोसाइटी में तो कैंसर इज़ अ मैसिव बर्डन ऑन दिस सोसाइटी। हमने 12 साल पहले सर्जिकल ऑन्कोलॉजी सोसाइटी की कुछ लाइक माइंडेड डॉक्टर्स ने मिलकर बुनियाद रखी थी लाहौर में, और कैंसर सर्जरी सोसाइटी इसलिए बनाई थी ताकि हम आगाही पैदा कर सकें डॉक्टरों में कि कैंसर या डायग्नोसिस किस तरह अच्छी तरह करनी है, फिर जनरल पब्लिक को हम बता सकें कि कैंसर से बचा कैसे जा सकता है, प्राइमरी प्रिवेंशन कैसे है, सेकेंडरी प्रिवेंशन जैसे मैंने जिसे अर्ली डिटेक्शन हम कहते हैं या जल्द तशखीस है वो कैसे करनी है। हर साल अक्टूबर में हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ मनाते हैं, वॉक्स करते हैं, मुख्तलिफ़ कॉलेजों में जाके लेक्चर्स देते हैं
जैसे बज़ात खुद मैं जाके लाहौर यूनिवर्सिटी, लम्स में, कनेट कॉलेज में, लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी में, NCA में, इस्लामिया कॉलेज कूपर रोड में, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, हर जगह पंजाब यूनिवर्सिटी में जाके हर साल हम लेक्चर देते हैं अवेयरनेस प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि आगाही ही ज़िंदगी है और जहालत मौत है। ये हमारा नुक्ता नज़र। अच्छा सर, जो पाकिस्तान कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम PCAP है, हाँ, इसमें आपके साथ कौन कौन से अदारे और मुंसलिक हैं? देखिए, इस वक्त एक तो जो सारे सर्जन्स हैं और जो डॉक्टर्स हैं, उसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी के फार्मेसी डिपार्टमेंट के हेड हैं प्रोफेसर ज़ीशान साहब, और पंजाब यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं नियाज साहब, उन सारों के साथ मिल के हम ये हर साल आगाही का प्रोग्राम करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आगाही या जानना जो है वो ज़िंदगी है। जहालत बेसिकली जो है ना वो रैम्पेंट है इस सोसाइटी में। इस सोसाइटी में लोग हफ्तों क्या महीनों इंतज़ार करते रहते हैं कि ये शायद खुद ही ये बीमारी कहीं चली जाएगी और डॉक्टर को नहीं जाके मिलते। मेरे पास अभी गुजरांवाला से एक पेशेंट आई है जो पिछले 4 साल से एक सो कॉल्ड होम्योपैथ को दिखा रही है ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। वो क्वैक है ना, वो जहालत की वजह से वो बेचारी अपनी ट्रीटमेंट वक्त पे नहीं करवा सकी। अभी उसकी छाती काटी है, अब उसको कीमोथेरेपी दे रहे हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। अब इस फी ज़माना जो छाती का कैंसर है, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, छाती का कैंसर है, हमें सिर्फ वो उसमें ट्यूमर निकाल देना चाहिए, छाती काटने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। और बहुत सारे मरीज़ों को 80-90% मरीज़ों को ठीक हो जाना चाहिए। हमारे मरीज़ जो है वो एडवांस स्टेज में आ रहे हैं क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, और यही हमारा नुक्ता नज़र है कि अवेयरनेस प्रोड्यूस की जाए। कराची में 40% कैंसर जो है आपका वो ओरल कैंसर है, मुंह का कैंसर है। क्यों? वहाँ पे हर दूसरा आदमी जो है वो पान और गुटखा खा रहा है, टोबैको वाला पान खा रहा है। यहाँ पे आप चले जाओ, किसी मुशायरे में चले जाओ, किसी जगह शादी पे चले जाओ, लोगों ने वो जहर जो है वो बाहर आपको मुफ्त देने के लिए रखा होता है पान की सूरत में। वो आपसे आके पूछता है जी मीठा पान खाएंगे, टोबैको वाला पान खाएंगे। बट देखो, सोसाइटी को बताने की ज़रूरत है ये जो पान आप डिलीवर कर रहे हो ये दिस इज़ पॉइजन बेसिकली। लेकिन लोगों को पता नहीं है ना। पढ़े लिखे लोग जो है वो उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मैंने 2 आपको एग्जांपल दी हैं। तो आगाही बहुत ज़रूरी है। और पंजाब यूनिवर्सिटी हमारे साथ मिल के सर्जिकल ऑन्कोलॉजी सोसाइटी पाकिस्तान, जिसको हम कैंसर सर्जन एसोसिएशन भी कहते हैं, उसके साथ मिल के ये एक नेकी का काम कर रही है। ये एक जहाद है, जहालत के अगेंस्ट ये जहाद है हमारा कि कैसे कैंसर से बचा जा सकता है। अच्छा सर, एक और सवाल, मेरा आखिरी सवाल आपसे, कि हमारे पाकिस्तान में ये सोच है कि अगर कैंसर थोड़ी एडवांस स्टेज में चली जाए तो उसका ट्रीटमेंट नहीं है अवेलेबल। क्या ये हकीकत है या मिथ है? देखें, अगर तो अर्ली स्टेज में कैंसर आ जाए तो उसका ऑपरेशन मुमकिन होता है क्योर के लिए, और वो हम करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो एडवांस स्टेज में आपके पास पहुंचते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उसको अबेंडन कर दें, उसको लावारिस छोड़ दें। उस मरीज़ का भी इलाज करने की ज़रूरत है। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं पैलिएटिव केयर, या पैलिएटिव केयर का मकसद ये है कि आप मरीज़ की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करें, उसके जो सिम्टम है उनको रिलीफ दें। तो जो सबसे बड़ा एडवांस कैंसर का सिम्टम है वो है पेन या दर्द। तो दर्द का मुदावा बहुत ज़रूरी है। अब आप ये देखें कि इस मुल्क की ट्रेजेडी है पाकिस्तान की, कि सारी दुनिया को ये डायामार्फिन सप्लाई करते हैं थ्रू अफ़गानिस्तान। डायामार्फिन हीरोइन का दूसरा नाम है। लेकिन यहाँ का कैंसर का मरीज़ है, उसको फ्री मॉर्फिन अवेलेबल नहीं है। मैं पिछले 20 साल से किंग एडवर्ड में डीन ऑफ सर्जरी था, हॉस्पिटल का चीफ ऑफ सर्जरी था 15 साल के लिए। लाहौर के किसी एक भी सरकारी अस्पताल में मॉर्फिन सल्फेट की ना गोली अवेलेबल है और ना मॉर्फिन सल्फेट का टीका अवेलेबल है कैंसर के मरीज़ को देने के लिए। इससे ज़्यादा बेहिसी क्या हो सकती है कौम के लिए कि सारी दुनिया को आप हीरोइन सप्लाई कर रहे हो डायामार्फिन, और आपका कैंसर का मरीज़ जो है वो
तड़प के मर रहे हैं बगैर मॉर्फिन के। तो ये सोचने की बात है कौम के लिए कि वो इनकी पैलिएटिव केयर के लिए बंदोबस्त करे। पाकिस्तान का जो नारकोटिक का यूज़ है मरीज़ों के लिए सारे रीजन में, ईस्टर्न मेडिटरेनियन में लोएस्ट है, यानी हम माइजर हैं इस बारे में। मरीज़ को तड़पता छोड़ देंगे, उसको मॉर्फिन नहीं देंगे। मैग्नस सल्फेट की एक गोली है, मॉर्फिन सल्फेट की जो गोली बाज़ार में पहले तो मिलती नहीं है, अगर मिलती है वो हम स्विट्ज़रलैंड से इंपोर्ट कर रहे हैं। ट्रेजेडी देखो इस मुल्क की कि सारी दुनिया को आप नारकोटिक सप्लाई कर रहे हो और आप आपके कैंसर के मरीज़ के लिए 1500 रुपये की एक महंगी दवाई स्विट्ज़रलैंड से इंपोर्ट कर रहे हो। इससे ज़्यादा इग्नोरेंस या बेहिसी क्या हो सकती है कौन? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का, कि आपने भी अपना बहुत ही कीमती वक्त दिया। और हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब ने जो जो बातें बताई हैं इस पे हमारी आवाम भी अमल करेगी और ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है इससे ज़्यादा से ज़्यादा आगाही हासिल करेगी।